Who was Maharaja Agrasen? कोई 3 चेंजेस जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो हिस्ट्री का आपको अपील करता है? बिहार से अभी कितनी महिला सांसद लोकसभा में पहुंची हैं 18वीं लोकसभा में? May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat, Rakesh. Thank you, sir. You have mentioned that you are bilingual. Yes, sir. So introduce yourself. Sir, my name is Rakesh Kumar. I come from Bhagalpur district of Bihar. I have done my class 10th from St. Joseph School, Kahalgaon. I have done my class 12th from DPS Ranchi. I have done my graduation in BA Honours Political Science from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. My hobby is traveling to new places, sir. Who was Maharaja Agrasen? Sir, basically Maharaja Agrasen was a king of Agroha in Haryana. He was regarded as the king of traders. He has established a kingdom of traders in Haryana, sir. And he was also messenger of non-violence and peace, sir. Which was the time period when he ruled? Sir, 3084 BC. 308? 4 BC. Before Christ? Yes, sir. 3084 means pre-Vedic period. Yes, sir. I have, in my research, sir, I have found that it is 3084 BC, sir. It is basically mythological character, sir, I think. Okay. Yes, sir. We do not have any written history about Maharaja sir. Agrasen? No, sir. Okay, fine. You come from Kahalgaon. Kahalgaon sir. is a very interesting place. It Yes, is sir. having a big plant of NTPC. Yes, sir. What is the installed capacity of that plant? Sorry, sir. Kahalgaon power plant. Sorry, sir. I don't recall. Are you aware that there is a power Yes, plant? sir. This power plant, sir. How old this power plant is? Sir, it has been established in 1990s, sir. 1990s. Yes, sir. Around 1995, sir. There is a bird sanctuary also around. Yes, sir. What is the name of that sanctuary? Sir, bird drinking sanctuary in Bhagalpur. Okay. Yes, So what is the specialty of it? Sir, basically it is for, sir, conservation of vultures and all other, sir, gangetic birds which came in that area, sir. Okay. Yes, sir. Which species of vultures? गिद्धों की कौन सी प्रजाति वहां पाई जाती है? Sorry, sir. I don't know about that. अच्छा, गिद्ध गायब क्यों हो रहे हैं? Sir, basically vultures are disappearing due to daclofan, sir, a chemical which is used by, sir, herbivorous animals, sir. And they are eating the dead of herbivorous animals, sir. That's why they are disappearing, sir. You are coming from Bhagalpur. Bhagalpur, Kishanganj, the whole belt is very famous for tannery industry also. Yes, sir. What is tannery industry? Sorry, sir. I don't know. Cleaning of leather. Cleaning of leather, sir. Yes. टैन करते हैं लेदर केमिकल यूज करके चमड़े की सफाई चमड़े करते की हैं। सफाई. तो चमड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में है वो पूरा बेल्ट। Yes, sir. नई जानकारी है? No, sir. ठीक है। ये बताएं कि भागलपुर से फिल्म उद्योग में कौन कौन से लोग आए जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया? नेहा शर्मा है, सर, एक. अच्छा, एक हो हाँ। गई और मुझे, सर, अभी एक ही याद है. नेहा शर्मा एक्ट्रेस है, सर, बॉलीवुड में. एक एक्टर है जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया, बड़े लंबे समय तक कार्य किया। उनका जन्म भागलपुर में हुआ था। ननिहाल उनका था तो अपने ननिहाल में उनका जन्म हुआ था। आमतौर पर ये परंपरा है कि विवाहित लड़कियों की पहली संतान मायके में होती है। तो उसकी जानकारी नहीं है मुझे, सर. नाम आपको नहीं पता? नहीं, सर. अशोक कुमार दादा मुनि का जन्म भागलपुर में हुआ था, ये आपको नहीं पता है? नहीं, सर. वाह, ठीक है। राकेश, यस, सर. हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि बिहार जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर लर्निंग था। यस, सर. कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बताइए जो बिहार में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट करते थे। सर, बेसिकली बिहार में 2 थे, सर. एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सर, जो भागलपुर में है, और सर दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, सर. ठीक है। यस, सर. अभी क्या स्टेटस है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बिहार में? सर, बेसिकली अभी हाल फिलहाल में, सर, जो नालंदा है, सर, उसे रीडेवलप किया गया है, सर, हायर एजुकेशन के लिए, सर. और बेसिकली सर भागलपुर में एक फेमस यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, सर, तो वो है, सर, वहाँ भी. और सर NIT पटना है, सर, और IIT पटना है, सर. और फिर सर मेडिकल पर्पस के लिए, सर, PMCH है, सर, IGMS पटना में है, सर, बेसिकली. जब इतने सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यस, सर. सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड,
फिर भी बिहार एक अच्छा इकोनॉमिक ग्राउंड क्यों नहीं बन पा रहा है? वहाँ टैलेंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर सी बात है, यस सर। बट वो टैलेंट वहाँ प्रोड्यूस होने के बाद बिहार के लिए काम ना करके दूसरे राज्यों में क्यों जा रहा है? सर बेसिकली जो पुल फैक्टर्स है सर और पुश फैक्टर सर दोनों काम करती है। जैसे कि सर पुश फैक्टर में सर जो रिसेंट अभी फ्लड आती है सर, बिहार में हमेशा फ्लड आती है सर, अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ आती भी है सर तो सस्टेन नहीं कर पाती है। और दूसरा सर जो पुल फैक्टर है सर, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है सर और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सर, वो अदर स्टेट में सर थोड़ा बेटर है बिहार से। तो क्या आपको लगता है बिहार आने वाले समय में भी एक सप्लाई ऑफ लेबर मार्केट बना रहेगा, जहाँ से सिर्फ लेबर सप्लाई होंगे अदर स्टेट्स में डेवलपमेंटल वर्क्स करने के लिए, और जहाँ से वो लेबर सप्लाई हो रही है वो राज्य ही विकसित नहीं हो पाएगा? नहीं सर, मुझे लगता है कि आने वाला समय में सर बिहार में भी सर डेवलपमेंट होगा सर, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सर। जैसे कि बिहार आईटी पॉलिसी सर, बिहार टूरिज्म पॉलिसीज़ इस बार लाए गए हैं सर, बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने वाले हैं सर बिहार में। तो सर वो लेबर जो है सर बाहर जा रहे हैं माइग्रेट करके, वो बिहार में ही रहेंगे सर, उन्हें काम मिलेगा और बिहार डेवलप करेगा सर। ठीक है राकेश, आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। यस सर। हाल फिलहाल में कुछ जगहों के नाम बताइए जहाँ पे आप घूमने गए हो। हाँ सर, मई मंथ में सर उज्जैन गए थे। यस सर। ठीक है, और यस सर, अभी फिलहाल ज्यादातर रुझान आपका किस तरह की जगहों में होता है? नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस साइट्स? नेचुरल ब्यूटी सर। उज्जैन में क्या नेचुरल ब्यूटी देखी आपने? सर सिप्रा रिवर फ्रंट सर। ठीक है। यस सर। ओमकारेश्वर भी गए थे? नो सर, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर गए Yes, थे sir. सिर्फ। ठीक है। राकेश, आप PSIR के स्टूडेंट हैं, sir. पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है। अगर आपसे सजेशन मांगा जाए कि अगर भारत के संविधान में 3 बदलाव करने हैं तो आप क्या सजेशन देंगे? शुरू से लेके अंत तक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कोई 3 चेंजेस जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सर पहला बदलाव तो सर राइट टू प्रॉपर्टी को लेके सर मैं करना चाहूँगा, जो कि फंडामेंटल राइट से सर हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें सर अभी भी देखा जाता है सर कि बहुत सारे लोगों का सर वो जेन्युइन कंसर्न होता है सर, वो ज़मीन होती है जो कि गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, लेकिन कंपनसेशन सही टाइम पे नहीं मिल पाता है उन लोगों को। एक सर मैं उसमें चेंज करना चाहूँगा सर। ठीक है, तो आप उसको फंडामेंटल राइट दोबारा से बनाना चाहेंगे या एग्जिस्टिंग राइट में कॉम्पनसेशन का क्लॉज ऐड करना चाहेंगे? एग्जिस्टिंग राइट में सर। ठीक है। यस सर। और दूसरा सर जो इलेक्शन लॉस है सर, जिसमें कि सर पॉलिटिक्स में सर क्रिमिनेशन हो रहा है सर, उसके लिए सर। ठीक है। यस सर। तीसरा सर पंचायती राज में सर मैं अमेंड करना चाहूँगा सर, क्योंकि जो प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ पावर है सर, वो बहुत राज्य में अभी तक नहीं हो पाया है सर, तो सर मैं उसे कंपलसरी करना चाहूँगा। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, प्राइमरली 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस सर। कौन सा ज़्यादा बेहतर है? सर दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं सर। फिर भी अगर एक को चुनना हो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, दोनों चुनने की आज़ादी आपके पास है नहीं फिलहाल, किसी एक को अगर वरीयता देनी हो तो किसे चुनेंगे? सर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि सर इसमें वाइडर अकाउंटेबिलिटी होती है सर, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर सर, और सर उसमें प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, यस सर। शुक्रिया सर। राकेश जी, यस सर। ये बताइए, यस सर। मान लीजिए आप SDM हो जाते हैं, यस सर। क्या कार्य होते हैं SDM के? सर SDM का सर बहुत वाइडर काम होता है सर, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है सर, लैंड रेवेन्यू वगैरह का भी सर एडमिनिस्टर करना होता है सर, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सर उनका रोल होता है। मान लीजिए आप हो जाते हैं, यस सर। आप ऐसे कौन से 3 काम करना चाहेंगे जिनसे आपको लगता है कि आपकी उस लोकेलिटी में, या मान लीजिए आप जहाँ के हैं, है ना, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं ज़िले से, तो वहाँ पर आप ऐसे कौन से 3 काम करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यस सर। सर जैसे कि मेरे एरिया में सर अभी वो NTPC है सर, तो उसका जो फ्लाई ऐश डंप होता है सर, वो बहुत बड़ा ओपन एरिया है और उसका सर वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, और जब सर वो हवा चलती है मतलब साल में सर 7-8 महीने तक सर, वो जो फ्लाई ऐश है सर वो पूरा हवा में उड़ती है सर, और वो सभी के घरों में चली जाती है। तो झाड़ू लगाने पे सर मतलब केजीज़ में वो राख निकलती है लोगों के घरों से सर, तो उससे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है सर, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है सर, मैं उस पर कंट्रोल करना चाहूँगा। और दूसरा सर, मेरे एरिया में सर फ्लड बहुत आता है सर, तो क्योंकि सर कहलगांव में सर घाट्स वगैरह जो है सर, एम्बैंकमेंट्स वगैरह वो उस तरह से नहीं बनाए गए हैं जो कि चाहिए सर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, मैं उस पर काम करना चाहूँगा सर। और तीसरा सर, मैं काम करना चाहूँगा सर वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर सर अपने एरिया में सर, क्योंकि अभी भी सर वहाँ पर बहुत ऐसी महिलाएँ हैं सर जो कि क्लास 10th या 12th तक की पढ़ाई करती है, उनकी शादी हो जाती है।
आपने जो फ्लाई ऐश की बात कही है, यस सर, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। यस सर। तो आप एसडीएम बनने के बाद ये, मतलब अब तक आपने कुछ इस पे एक्शन लिया कि नहीं लिया? यस सर, मैंने कंप्लेन रजिस्टर किया था सर, जी। लेकिन इस पर कोई एक्शन हुआ नहीं सर। कुछ मीडिया वाले भी आए थे सर, जी। लेकिन इस पर कोई एक्शन हुआ नहीं सर वहाँ पर। तो फिर आप शांत हो गए? मैं फिलहाल तो भी बाहर रहता हूँ सर। जब मैं वहाँ था तो 2-3 उस पर सर बहुत सारा आंदोलन भी हुआ वहाँ पर सर। एमएलएस वगैरह भी आए सर, वहाँ लेकिन पर वो जो इफेक्ट पड़ा आंदोलन नहीं। हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बताइए। हाँ सर, बेसिकली जब ये फ्लाई ऐश का पॉन्ड बन रहा था सर, तो वो एक लेवल पे बना था। उस समय सर बहुत कम डंपिंग होता था, तो उस समय सर वो था प्लान कि उस पर ग्रास लगा के पार्क बनाया जाएगा, लेकिन फिर वो बना नहीं। एनटीपीसी का सर और एक्सपेंशन हुआ, तो सर वो 2-3 लेवल पे सर वो 7 लेवल तक भी बन गया है। तो सर बहुत सारे वहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट है सर, वो भी आए थे सर। वहाँ के लोग भी सर आंदोलन किए। तो जो हमारे एमपी साहब हैं सर, वो भी आए थे। उन्होंने भी सर कंसर्न लिया, लेकिन फ्रूटफुल कंक्लूजन कुछ नहीं निकल सका सर अभी तक उसका। अच्छा, इस समय भी देखो बिहार में बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट हो जा रहे हैं जो मतलब क्रिमिनल केसेस भी हो जा रहे हैं, है ना, एक्टिविटी हो जा रही है, करप्शन भी। हमें एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो बिहार आज भी वो एग्जाम्पल्स दे रहा है। इसके पीछे आप रूट कॉज क्या मानते हैं? सर बेसिकली सर करप्शंस के पीछे सर रूट कॉज तो सर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है सर, जो कि लोगों के अंदर नहीं है सर, मुझे लगता है बहुत कम है सर वहाँ पर। तो इसके लिए तो फिर सोशल एक्टिविस्ट आपको बनना चाहिए। यस सर, ये भी है सर। लेकिन सर अगर एसडीएम बनता हूँ सर, तो मेरे पास एक इन्फोर्समेंट पावर रहेगा सर, तो मैं वो बेटर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सर। कितने बड़े एरिया में आप कर पाएंगे? नीट तो बिहार, तो आप तो किसी तहसील जिले में बैठे होंगे, यस है ना? सर। तो फिर पूरा बिहार कैसे कवर होगा? सर शुरुआत छोटे से होगी सर, फिर आगे बढ़ता चला जाऊंगा सर, कारवां बनता जाएगा और तो मतलब इम्प्लीमेंट करूंगा। आप अधिकारी बनने के बाद सोशल एक्टिविस्ट बन जाएंगे, अगर ऐसा बनता गया तो? क्योंकि आप कह रहे हैं ना बढ़ता जाएगा भाई। यस सर। तो अगर आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर योर यस सर। ओन फ्यूचरिस्टिक डिसीजन, है ना? यही तो आप कहना चाह रहे हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब सर अगर एसडीएम बनता हूँ सर, तो जो सर पावर ऑफ सर, जो सर पावर है सर मेरे पास इन्फोर्स करने का सर लॉस को, सर मैं वो कर पाऊंगा सर। तो थोड़ा डिटरेंस समाज में आएगा सर उस वजह से सर। अगर मैं सोशल एक्टिविस्ट सिर्फ हूँ सर, तो मैं सिर्फ लोगों को परसुएट कर सकता हूँ, उनके मोरल को सर अपील कर सकता हूँ। तो सर वो थोड़ा कम फ्रूटफुल हो सकता है सर, अच्छा, इसलिए। ये आप कहना चाहते यस हैं। सर। अच्छा, ये जो आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, यस सर। तो अभी मणिपुर में एक इशू हुआ था, यस सर। मतलब चल ही रहा है, यस सर। क्या है, क्यों हुआ ये? सर बेसिकली वहाँ पर 2 ट्राइबल कम्युनिटी है सर, मेथी है सर और कुकीज़ वगैरह है सर। तो उनके बीच सर वो रिजर्वेशन को लेकर सर इश्यू हुआ था, जो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किए थे सर। क्योंकि सर उनमें जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है सर, वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं सर, तो सर उन्हें कम रिजर्वेशन था सर। और जो वेल ऑफ ज़्यादा हैं सर, जो कि कैपिटल के अराउंड रहते हैं सर, उन्हें प्रोविज़न दिया गया था सर रिजर्वेशन को लेकर सर, इसलिए। अच्छा, आपका जो PSIR सब्जेक्ट है, यस सर। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी आती? नो सर, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती? नहीं इसमें नहीं आती है सर। अच्छा, इसमें नहीं आती। आपने तैयारी के दौरान पढ़ा है? यस सर। कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो हिस्ट्री का आपको अपील करता है? महात्मा गांधी सर। उनकी कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक कोई जो आपको सबसे फेवरेट लगती है, बहुत बढ़िया लगती है? सर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। यस सर। चलिए, थैंक यू। राकेश, यस सर। अभी भारत का विदेश मंत्री कौन है? श्री एस जयशंकर सर। और भारत की वित्त मंत्री? श्रीमती निर्मला सीतारमण सर। भारत की प्रथम महिला उप वित्त मंत्री कौन थी? या सॉरी कौन? सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इत्तेफाक से वो बिहार की थी, प्रथम महिला उप वित्त मंत्री। सॉरी सर, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? नहीं सर। अच्छा, बिहार से अभी कितनी महिला सांसद लोकसभा में पहुंची है 18वीं लोकसभा में? सर 2-3 का तो मैं नाम याद है सर मुझे। एक संभावी चौधरी है सर, एक ही का भी नाम याद आ रहा है सर मुझे भी। अच्छा, यस सर। कितनी है वैसे, संख्या याद है? सर आई थिंक 5 है सर। 5 आपकी संख्या सही याद है, यस सर। तो सिर्फ एक का नाम याद एक ही का नाम याद है। उसमें से एक जो महिला है वो बड़े लंबे समय से सांसद हैं, यस सर। उनके बारे में कोई जिज्ञासा या जानकारी है? कितने बार से वो लोकसभा में सांसद हैं? सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ सर? हम्म, सर वीना देवी आई थिंक सर, कुछ इस तरह। कोई बात नहीं, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया राकेश, Yes, sir. आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
मैगजीन सर। आइए बैठिए। आपके इंटरव्यू का डेट आ गया ना, 21 सर। अक्टूबर है। 21 अक्टूबर है सर। ठीक है, कैसी लग रही है आपको अपनी तैयारी? थोड़ा सर भागलपुर के बारे में सर थोड़ा काम करना पड़ेगा। ओके ठीक है। यस सर। और थोड़ा सर जिस एनटीपीसी से इतने परेशान हैं हाँ उसका कम से कम बायो प्रोफाइल एक बना लीजिए, कितना यस सर। इंस्टॉल कैपेसिटी है। यस सर। हाल फिलहाल तक वो बिहार का सबसे बड़ा पावर प्लांट था, यस सर। हाल फिलहाल तक, लेकिन अब तो चूंकि नवीनगर प्लांट आ नवीनगर गया आ गया है सर। यस तो सर। वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है। और चूंकि आपका जो पूरा बेल्ट है ना, कहलगांव भागलपुर बेल्ट है, वो बाढ़ पीड़ित भी है। यस सर। वो आपने ठीक बताया, कोसी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन डॉल्फिन के लिए भी बड़ा फेमस है वो। यस सर, भागलपुर में बना है सर वो। हाँ, यस सर। तो वो सब भी ध्यान रखिएगा। यस सर। और अभी भागलपुर और कहलगांव के आसपास 2-3 पुल बन रहे थे, सब ढह गए लगता है। यस सर, वो सुल्तानगंज में बन रहा था सर वो। हाँ। तो वो सब भी पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है, अपनी तैयारी रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस आपने ऑप्शनल रखा हुआ, बीए में भी पढ़ा है, ऑप्शनल भी है आपका, यस सर। तो उस पर अपनी तैयारी ठीक ठाक रखिएगा, यस सर। बस आप पढ़ते रहिए। बिहार के पॉलिटिक्स पर जब ध्यान देते हैं ना, यस सर। तो करेंट जो खासतौर पे महिला प्रतिनिधियों के बारे में जरूर जानकारी विकसित करिए। यस सर। और किसी का नाम अगर सांसद हैं, चाहे उम्र में आपसे छोटे भी हैं, मान हाँ। लीजिए, तो सुश्री लगा सकते हैं ना, थोड़ा सम्मानजनक एक होता है ना यस सर। शब्द लगाने का। तो ऐसी नहीं बोल देते। क्या बोला आपने? कौन सा एक ही नाम आपको याद आ रहा था सांसद का? सर एक ही नाम था, सामवी चौधरी। हाँ, श्री मतलब श्रीमती, मतलब सुश्री। सुश्री का मतलब होता है जिसका शादी नहीं हुआ है उनका भी। मैरिटल स्टेटस के बारे में आपको नहीं पता है। अच्छा। अगर पता है कि मैरिड हैं तब तो हाँ। मैसेज हो जाएगा। यस सर। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को अपने हस्बैंड से जोड़ के क्यों बताते हो, यस सर। फेमिनिस्ट जो अप्रोच है। तो आप सुश्री लगा सकते हैं या मिस। यस सर। एक होता है मिस और एक होता है मिस। यस सर। तो मिस तो कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां हैं, और मिस कहते हैं जो सुश्री। यस तो सर। सुश्री लगा दीजिए, और अगर पता है कि श्रीमती है तो श्रीमती लगा दीजिए। सुश्री शांभवी चौधरी ऐसे बोलना चाहिए। यस। ठीक है, श्रीमती या सुश्री वीणा देवी, यस सर। ऐसे 5 नाम याद रखिएगा। और आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि बिहार का प्रथम जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 51-52 में, उसमें 2 ही महिला सांसद जीत के आई थी लोकसभा में। उसमें एक भागलपुर से आई थी और एक पटना से आई थी। यस। भागलपुर से जो सांसद बन के आई थी उनका नाम था सुष्मिता सेन, और पटना से जो आई थी, पूर्वी पटना से, वो थी तारकेश्वरी देवी। यस सर। बाद में वो बाढ़ से चुनाव जीतने, बाढ़ से 3 बार और जीती थी। तो महिला प्रतिनिधित्व पहली लोकसभा से दूसरी लोकसभा में बढ़ा, दूसरी से तीसरे में बढ़ा, तीसरे से चौथी में बढ़ा, लगातार बढ़ा था 4 बार। उसके बाद प्रतिनिधित्व घटता गया। हालांकि उन दिनों झारखंड भी साथ में था, लेकिन चौथी लोकसभा में जहाँ तक मुझे ध्यान है, या तीसरी में 6 सांसद थी, अभी 5 हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि झारखंड के अलग होने के बाद, मतलब 2000 से, आंकड़ा हमेशा 5 से कम रहा था। पहली बार 5 हुआ है, तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन बिहार से आया है महिलाओं का। ये इंपॉर्टेंट है। एमएलए भी बहुत बढ़ी गई है, महिला एमएलए की संख्या भी हाल के वर्षों में बढ़ी है। बीच की अवधि में घट गया था, 67 से लेकर 2000 तक घट गया था। पहले भी बहुत महिलाएं थी, एक ज़माने में 50s और 60s में 33-34 महिलाएं एमएलए बनी थी, लेकिन बीच में घट के 8, 7, 4 ऐसे हो गया था। अब फिर संख्या बढ़ के 30-35 के आसपास पहुंच गया है। तो थोड़ा सा वो सब देख लीजिएगा जेंडर सेंसिटिविटी के लिए। इस लिहाज से भी कि भाई निकट भविष्य में जब 1/3 हम सीटें रिजर्व करने वाले हैं विधानसभा में और लोकसभा में, 33%। तो बिहार की महिला या महिला समाज उसके लिए कितनी तैयारी कर रहा है। यस सर। अगर आज 5 ही महिला सांसद हैं और कल को 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 अगर 40 भी सीट रहेगी तो 13 कम से कम सीटें आरक्षित हो जाएंगी। तो उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। यस सर। खैर, तो एक वो पहलू है। दूसरी चीज़ ये है कि संविधान के कुछ प्रावधान है, जैसे आजकल चुनाव हो रहे हैं, तो वो आर्टिकल 370, 35A और अपना वक्फ बोर्ड वाला, रिलीजियस बोर्ड फ्रीडम वाली Yes, sir. बात, इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी राय क्या है। यस सर। वो सब थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर। लेकिन कुल मिला के ठीक है आपका।
एंट्री ठीक है, लिबास वगैरह थोड़ा सा ब्लेजर बड़ा लग रहा है। नहीं सर, वो मेरा जो सर ओरिजिनल ब्लेजर है सर, वो लॉन्ड्री में दिया हुआ है धोनी के लिए सर। अच्छा, ये ये बिहार friend- से जस्ट आए हैं सर इंटरव्यू देने के लिए। ये किसी फ्रेंड का है? हाँ सर, यहाँ फ्रेंड हाँ। के लिए है सर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हाथ भी काफ़ी बाहर Yes, निकल रहा है। ठीक है, तो वो अपना ध्यान रखिएगा। वैसे बैठने वगैरह की भंगिमा ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह ठीक है, पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी है बातचीत करने की, तो संप्रेषण आपका ठीक है। लास्ट बार भी सर इंटरव्यू दिए थे 68 बीपीएससी में। हाँ, हाँ 76 नंबर आया था सर। वेरी गुड। लेकिन सर डीआई गलत हो गया था सर 40 मार्क्स का ओके, मेंस में कमजोर रह मेंस गया। में सर। तो सर मेंस में बस कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा था, तो सर वो फाइनली 12-13 मार्क्स से वो छूट गया था सर। कोई बात नहीं, selection। ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप पिछले बार 96 हाईएस्ट था, तो आप 75 तक पहुंच ही गए हैं। यस सर। 20 नंबर का और गैप बचा है, यस तो सर। 10-15 नंबर और भी बढ़ाने की कोशिश करिए, बढ़ा सकते हैं आप। यस सर। पृष्ठभूमि अच्छी है, परफॉर्मेंस ठीक है। यस ठीक है, और कोई संशय या जिज्ञासा? नो सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।